Good morning, my dear students. How are you all? Today I am going to teach you the next poetry, Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Okay, so Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. You know, I want to tell you that you should focus on word meaning also, because in the examination, poetry and poet, these kinds of questions can become in the examination that write the name of poem and poetry. So you should focus. Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Okay. So according to me, your spelling should be correct, so that the examiner give you right marks. Understand? So you should focus on word meaning also. So this poem is Keeping Quiet, Pablo Neruda. I want to teach you about something, the poet Pablo Neruda. You know Pablo Neruda. Who is Pablo Neruda? Pablo Neruda is a Chilean poet. He is in Chilean poet, Chilean, and he is you can say a diplomat also, politician also, and he was Nobel Prize winner. Nobel Prize winner. Pablo Neruda was Nobel Prize winner also. So this is a brief information about poet. In this poetry, the poet wants to describe about what? About keeping quiet. What is the meaning of keeping quiet? Keeping quiet. Here, in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Pablo Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Introspection means self examination, you can say. Introspection, खुद को चेक करते हैं. Introspection, self examination. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन सेल्फ एग्जामिनेशन. इस कविता में जो कवि है वो कहता है कि खुद को चेक करने की बात कर रहा है. यहाँ पे सेल्फ एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आपसी समझौता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग among human beings. Among human beings. Here, poet is saying that in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection, self-examination and creating a feeling of mutual understanding among human beings. आदमी को अपने आप में, अपने बीच में एक आपसी समझौता रखना चाहिए. हमें एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए. We should understand mutual understanding because this is very necessary. इस भागदौड़ की जिंदगी में आदमी शांत नहीं है. जैसे कि अभी टाइम क्या चल रहा है, ये पोइट्री इस समय एकदम फिक्स चल रही है. इस समय की अगर बात की जाए, जैसे सभी लोग क्या है, पूरा संसार अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है. अगर कंपेयर किया जाए तो शायद पैब्लो नेरुदा का लिखने का मेन पर्पज आज ही का था, इसी दिन का लिए था कि सभी लोगों को अपने आप को कैद कर लेना चाहिए, सभी लोगों को अपने आप को शांत रखना चाहिए, है ना. ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसी पर टोटली कह रहा है. अब देखिए इसमें आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैब्लो नेरुदा पोएट्री. शांति, सब लोग कीपिंग क्वाइट रहें, अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपने आप को साथ रखें, बिजी लाइफ जीना थोड़ा बंद कर दें, हार्डवर्क करना कम कर दें. तो ये मेन पर्पज इस पोएट्री का है. तभी तो यहाँ पे कहा गया इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स. ओके, so I'm going to teach the stanza. Okay, let's see and let's watch. The first line of this poetry is, now we will count to 12 and we will all keep still. Here poet is saying that now we will count to 12 and we will all keep still. कवि जो कह रहा है कि आइए we will count to 12, हम लोग 12 तक काउंट करते हैं, 12 तक गिनते हैं. यहाँ पे कवि का जो मतलब है कि 12 तक क्या गिने, 12 महीने होते हैं. 12 महीने के बावजूद जैसे अगर 12 बजता भी है, 1 से लेकर 12 तक घड़ी हमको दिखाती टाइम. यहाँ पे मतलब क्या है, कवि ने यह एक्सप्रेस नहीं किया है या एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो किसके बारे में कहना चाहता हो. ठीक है, ये हम लोग खुद समझना है कि 12 का मतलब यहाँ पे है क्या. कह रहा है कि वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और हम लोगों को अपने आप को आगे समझना होगा, स्टिल कुछ करना होगा, है ना. समझते हैं. We will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Once, for once, एक बार, कम से कम एक बार, on the face of the earth, इस धरती के ऊपर जो हम रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, धरती के ऊपर हम लोग जिंदगी को अपने सर्वाइव कर रहे हैं. कम से कम एक बार क्या करते हैं, for once on the face of the earth, let us not speak in any language. हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं.
कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करते, हम शांति से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए ही हम शांत रहते हैं, अपने जो बिजी जो हमारा शेड्यूल है उसको बंद करके हम शांत रहते हैं कुछ सेकेंड के लिए ही। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यहाँ पे जो बात कर रहा है कि नॉट मूव आवर आर्म्स, आवर आर्म्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो हार्ड वर्क करते हैं, आवर आर्म्स जो हम डेली हार्ड वर्क करते हैं उसको कम से कम बंद करके हम कुछ शांति की जिंदगी जिए, कुछ सर्वाइव करें, कुछ व्यतीत करें। नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इतना हम जो रोज हार्ड वर्क करते हैं किसके लिए करते हैं, क्या मिलेगा, नथिंग। सो वी शुड स्टॉप आवर हार्ड वर्क एंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड कुछ मिनट के लिए ही कि अपने आप को क्वाइट करके इस लाइफ के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ जो अपनी लाइवलीहुड है उसको हम कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। यहाँ पे एक वर्ड है एक्जॉटिक, इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्जॉटिक मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट। यह एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम होगा जब हम लोग सब कुछ बंद करके अपने आप को टाइम को समझेंगे, अपने आप को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन में रहेंगे, हार्ड वर्क के बारे में नहीं थिंकिंग करेंगे कि हाँ ये करना है, आई विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क एंड आई विल गो टू देयर, आई विल कम हियर। सो इसके बारे में थिंकिंग नहीं करेंगे जैसे अभी चल रहा है। एवरी पर्सन आर इन देयर हाउस, सभी लोग अपने आप को बंद किए हुए हैं, सभी लोग चुपचाप पड़े हुए हैं, नो वर्क। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वही कह रहा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट है, यह एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम इसमें चल रहा है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। एंड विदाउट रस एंड विदाउट इंजन, विदाउट रस, रस मीन्स जो दौड़ भाग की जो जिंदगी है, भाग दौड़ की जो जिंदगी है, और जो इंजन, विदाउट इंजन मतलब न कार चल रही है, न ट्रेन, न बस, न एरोप्लेन, कुछ नहीं चल रही है, सब कुछ शांत है, विदाउट इंजन। यहाँ पे कहा ना विदाउट इंजन, विदाउट रस, विदाउट इंजन, सब कुछ जहाँ है वही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, कोई किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं है, सभी लोग जहाँ है वहाँ पे शांत है। कहा जाता है कि चलती का नाम गाड़ी है, तो शायद यही बात कर रहा है कि विदाउट रस, विदाउट इंजन, सब लोग शांत पड़े हुए हैं, है ना। इस प्रकार की जिंदगी को हमें फीलिंग करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। यहाँ पे जो निर्मला जी कह रहे हैं वो बात समझने वाली है कि वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, है ना। आगे जो बोल रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन। धरती पे कभी ऐसा नहीं हुआ है, न हुआ था, बट अब इस समय है। शायद इसी प्रकार की जिंदगी के बारे में यह कविता समझाने का प्रयास कर रही है कि मीनिंग क्या इसका है। आगे कह रहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स इस प्रकार की जो एक अजीब बात हुई है, एक अजीब घटना हुई है, इस सब में हम लोग क्या है, टुगेदर, एक साथ। वी वुड ऑल बी टुगेदर, सभी लोग एक साथ हैं, एक साथ बैठ के अपना वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बिजी शेड्यूल से हटाकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए हैं। एंड फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन के बारे में जो कह रहा है, जो मछुआरे होते हैं, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, पावरफुल तो होते ही हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वो इस समुद्र में, ठंडे समुद्र में अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स जो मछलियां होती हैं, यू कैन से एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वेल्स होती है जो मछलियां होती हैं, उनको वो हार्म नहीं करेंगे। इसी बहाने अगर आदमी कुछ दिन तक शांत रहेगा तो जो फिश हैं, जो वेल्स हैं, वो कुछ लाइफ 40 दिन 50 दिन 40 डेज 50 डेज अपनी लाइफ को आगे जिंदगी जी पाएंगी। यहाँ पे यही कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो मछुआरे हैं वे मछलियों को हार्म नहीं कर पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वे आदमी जो समुद्र में नमक को जो गैदरिंग करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग साल्ट, जो नमक को जो इकट्ठा करते हैं, नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जो उनके हाथ जो हर्ट हो चुके हैं, जो उनके हाथ में जो चोट आ चुका है, जो घाव हो चुका है, वो अपने हाथ को कम से कम कुछ समय के लिए सेफ रख सकेंगे, कुछ समय के लिए उनके हाथ सुरक्षित रहेंगे। अपने हाथ को बार बार नहीं देखेंगे कि हमारे हाथ नमक कलेक्ट करते करते इतने गंदे, इतने खराब हो चुके हैं। मीनिंग टू से दैट कीपिंग क्वाइट का मतलब यही है कि शांति से कुछ समय के लिए 40 दिन 50 दिन 40 डेज 50 डेज 60 डेज के लिए आदमी अगर कंट्रोल कर ले अपने आप को, एक जगह शांति से रहे, एक टुगेदर रहे, तो ये जो मछलियां हैं वो भी कुछ अपनी लाइफ को जी सकती हैं। और ये जो नमक के वाले जो मजदूर होते हैं, जो समुद्र में नमक को कलेक्ट करते हैं, उनके हाथ जो हर्ट हो रहे हैं, जो उसमें नुकसान पहुंच रहा है, वो उनके हाथ भी कुछ दिन के लिए सेफ रहेंगे। ओके, यानी कि भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ टाइम के लिए हमें आराम मिलेगा। ओके।